Hello students, I hope you have already watched the last 4 videos of transition metals. Today we will do part 5 of the transition metals. Today we will do specific properties of transition metals. We'll do variable oxidation states, magnetic properties of transition metals and their ions, formation of colored compounds by transition metals, formation of complex compounds, catalytic properties of transition metals and their compounds, formation of interstitial compounds by transition metals, and alloy formations. Now we will do variable oxidation states. Transition metals show variable or multiple oxidation state. You can see the example of first row transition metals या 3D series. You can see that from scandium to zinc, these elements are showing variable or multiple oxidation states, and the number or oxidation state written in bold and red color is the most common oxidation state of that particular element. But इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट कर लीजिए. फर्स्ट केस आता है स्कैंडियम का, स्कैंडियम, एंड सेकंड आता है जिंक का. दोनों ही ऐसे एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं. स्कैंडियम तो एक ट्रांजिशन मेटल है, हालांकि जो जिंक है इट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल, बट जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन मेटल. तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि नेम द ट्रांजिशन मेटल विच डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर होगा स्कैंडियम. अगला केस आता है मैंगनीज का. मैंगनीज फर्स्ट सीरीज या 3D सीरीज में ऐसा मेटल होता है which show maximum number of oxidation states. Then अगर आप देखें क्रोमियम को, क्रोमियम का ग्रुप नंबर है 6 और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 तक जाता है. देन मैंगनीज, मैंगनीज का ग्रुप नंबर है 7 और इसका भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 होता है. Now we will take few questions related to this variable oxidation state topic. So पहला क्वेश्चन आता है कि transition metals except few like scandium or zinc, they show variable or multiple oxidation states. So reason is they have their valence electron in both Ns and N-1 d subshell, and the energy gap between both Ns and N-1 d subshell is very less. So both the types of subshell can participate in bonding. और second reason आता है due to partially filled d subshell. So next is name a transition element which does not exhibit variable oxidation states. तो ये हमने डिस्कस भी किया था. सो आंसर कैन बी स्कैंडियम. यहाँ पे हम जिंक नहीं लिखेंगे बिकॉज जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड व्हाई. तो इसका आंसर था मैंगनीज. और क्यों मैंगनीज exhibit largest number of oxidation states? Because manganese has maximum number of unpaired electron in its d subshell. Next we will discuss trend in stability of higher oxidation states. तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि higher oxidation states are generally more stable with fluorine or oxygen. तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं व्हेन दे फॉर्म कंपाउंड विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन, तो ज़्यादातर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ. तो उसका रीज़न आ जाता है. सो रीज़न इज
because of small size and high electronegativity of fluorine or oxygen. They can able to oxidize the metal to its highest oxidation state. तो आप उसमें ये आंसर लिख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप सिर्फ फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन हैज एबिलिटी टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू either higher lattice energy or higher bond enthalpy for higher covalent compounds. सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए स्टेबल बनाता है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद मेटल एटम्स. Now, the ability of oxygen to stabilize these high oxidation states exceeds that of fluorine. तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझना ज़रूरी है. तो इसके लिए we will take the example of मैंगनीज. तो अगर आप मैंगनीज की बात करेंगे तो इसका हाईएस्ट फ्लोराइड जो होता है जिसमें मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो होता है MnF4. और अगर आप मैंगनीज की ऑक्साइड की बात करें तो वो उसका ऑक्साइड होता है Mn2O7. और दोनों ही में फ्लोराइड में भी और ऑक्साइड में भी अगर हम कैलकुलेट करें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, वी विल फाइंड इन फ्लोराइड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, जबकि ऑक्साइड में मैंगनीज कैन शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इवन मोर देन फ्लोरीन. तो इसका रीजन पूछ लेते हैं. तो रीजन आता है ऑक्सीजन स्टेबलाइजेस द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इवन मोर देन फ्लोरीन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद मेटल्स. नाउ वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. सो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन. दिस क्वेश्चन कैन आस्क इन मोर देन वन वे. तो एक और तरीका हो सकता है, वो है मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन. तो आप इक्वेशन देख सकते हैं, इसमें कॉपर प्लस एक्वस की डिस्प्रपोर्शनेशन हो गई है एंड इट चेंजेस टू कॉपर 2 प्लस एक्वस एंड कॉपर सॉलिड. तो इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी पूछ सकते हैं. कॉपर 2 प्लस एक्वस इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस एक्वस. ऑल्दो यू आर अवेयर कि जो कॉपर होता है उसके केस में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यू हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कन्फिगुरेशन 3d10. तो इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कॉपर में से मुश्किल है. उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड हाई है, पर फिर भी कॉपर 2 प्लस एक्वस ज्यादा स्टेबल क्यों है? तो इन तीनों ही क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज ड्यू टू मच नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस देन कॉपर प्लस एक्वस. तो जो कॉपर 2 प्लस एक्वस की हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है इट इज मोर नेगेटिव, और उसकी वजह से जो कॉपर 2 प्लस एक्वस होता है इट इज मोर स्टेबल एंड दिस हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी इट compensate for high second ionization energy of copper. When we are discussing about the stability of copper plus aqueous and copper 2 plus aqueous, so we cannot forget about standard electrode potential. तो अगर मैं कॉपर प्लस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूं तो वैल्यू है 0.52 वोल्ट, और अगर आप कॉपर 2 प्लस एक्वस का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं तो वैल्यू आती है +0.34 वोल्ट. तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो जो कंसेप्ट हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वीडियो 4 में किया था उसके अंदर आपने देखा था कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में
प्रोसीड करता है, तो आप देखेंगे कॉपर प्लस के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब कॉपर जो प्लस है वो आसानी से कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है एज कंपेयर टू कॉपर 2 प्लस। इट मीन्स जो कॉपर प्लस है उसकी स्टेबिलिटी कॉपर 2 प्लस एक्वस से कम है, तभी तो वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। और इसी वजह से कॉपर प्लस एक्वस आसानी से रिड्यूस हो जाता है बिकॉज इट हैज हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सो इट इज लेस स्टेबल देन कॉपर 2 प्लस एक्वस। और रीजन इसका क्या है? हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस देन कॉपर प्लस एक्वस। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि आपने इससे पहले जब डिस्कस किया था कि कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, तो आपने कहा था कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। तो हाँ जी, कम होती है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। तो आप देख सकते हैं कॉपर प्लस का भी पॉजिटिव है, कॉपर 2 प्लस का भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे मैं ओवरऑल हाइड्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस एक्वस की हाइड्रेशन को। तो कॉपर 2 प्लस की हाइड्रेशन जो है कॉपर प्लस एक्वस से ज्यादा होती है, तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कम आता है कॉपर प्लस एक्वस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। नेक्स्ट वी विल डू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर आप सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं तो यू विल फाइंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर अगर आप देखें जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। और पैरामैग्नेटिज्म इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। Now if we discuss the magnetic properties of transition metals, then you will find that transition metals and many of their ions or compounds are paramagnetic in nature। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी सब्सटेंसेस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स या उनके आयंस पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1 d सबशेल, या इसे कह सकते हैं बिकॉज ऑफ पार्शली फिल्ड d सबशेल इन ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आयंस दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। Now we will calculate the magnetic moment of these transition metals and their ions. For that we will use spin only formula of magnetic moment, and formula is magnetic moment is equal to square root of n plus 2, and ये जो bm है it is Bohr magneton, it is the unit of magnetic moment, और n is the number of unpaired electron। magnetic moment जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज होगी। और मैग्नेटिक मोमेंट इट गिव्स अ यूजफुल इंडिकेशन कि आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इंडिकेट करती है मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव रिटन आयन, उसके बाद मैंने उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, और then I have written the unpaired electron, and based on these unpaired electron I find out the magnetic moment using the spin only formula of magnetic moment. Now we will do a numerical related to magnetic moment.
So question is, calculate the magnetic moment of a divalent ion in aqueous solution if its atomic number is 25. Atomic number is 25, but we have to find out the magnetic moment of divalent ion. Divalent ion mean +2 charge. So first we will write the electronic configuration for neutral atom. For neutral atom, number of electrons is equal to atomic number. So configuration I 3d5 4s2. Then we will write the configuration for divalent ion by removing 2 electrons from 4s orbital. So configuration for divalent ions came out to be 3d5. So number of electrons are 5. Then by using spin only formula for magnetic moment, mu is equal to square root n plus 2. We will put the value of n is equal to 5. We got magnetic moment is equal to 5.92 Bohr magneton. In a similar way, you will find the magnetic moment for second numerical. So numerical is calculate the spin only magnetic moment for M2 plus aqueous ion and trivalent ion. Z और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 27. तो यहाँ पे आपको डाइवेलेंट आयन का भी निकालना है और ट्राइवेलेंट का भी निकालना है. ट्राइवेलेंट का मतलब है M3+. Now we will do formation of colored compounds. Transition metal forms compounds of various colors. You can see that transition metal ions in aqueous solution are showing various colors. इसमें you will note few things. पहला आता है scandium 3+ aqueous. इसकी configuration होती है 3d0 and it is colorless. सेकेंड केस आता है टाइटेनियम 4+ aqueous का. इसकी भी configuration है 3d0 and it is also colorless. एंड थर्ड आता है जिंक 2+ aqueous. इट्स कन्फिगरेशन इज 3d10 एंड इट इज ऑल्सो कलरलेस. तो एक क्वेश्चन आ जाता है वाई स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+ एंड जिंक 2+ आर कलरलेस इन एक्वस मीडियम. और एक और क्वेश्चन आता है, अगर आप ध्यान दें, वो है टाइटेनियम 3+ का. टाइटेनियम 3+ की कन्फिगरेशन है 3d1 एंड इट इज पर्पल इन कलर. अगर आप इससे ऊपर वाले टाइटेनियम 4+ को देखें तो वो कलरलेस है, वाइल टाइटेनियम 3+ इज पर्पल इन कलर. तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई टाइटेनियम 4+ इज कलरलेस वाइल टाइटेनियम 3+ इज पर्पल इन कलर. तो इसका रीजन जो है ये कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. Now before discussing the reason कि why transition metal form colored compounds, आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि जो d orbitals होते हैं, we have 5 d orbitals in 1d subshell. तो d subshell में ये 5 orbitals जो होते हैं, इनमें से dx, y, dyz and dz square, these are between the axis, while out of 5 dx square minus y square and dz square they are on the axis. When ligand approaches this metal ions, ligands जो होते हैं they have lone pair with them. When they approaches the metal ion, और metal ion के d orbitals पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो रिपल्शन होती है. इस रिपल्शन की वजह से d सबशेल के इन पांचों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. एंड दे स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल Eg एंड T2g लेवल. तो अगर आप इसे डायग्रामेटिकली देखें तो आप देखेंगे कि अभी इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, बिकॉज दिस इज फ्री मेटल आयन. लेकिन शुरू में जब लीगेंड अप्रोच करते हैं मेटल आयन को, तो इन पांचों की जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की बराबर बढ़ती है
क्योंकि अभी तक जो फील्ड होती है इट इज सिमेट्रिकल फील्ड, चारों डायरेक्शन से बराबर रिपल्शन फेस करते हैं ये पांचों के पांचों d ऑर्बिटल्स। लेकिन व्हेन दिस लिगेंड अप्रोचेस फर्दर टुवर्ड द मेटल, अगर आपका जो कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल शेप का है तो लिगेंड्स जो हैं दे विल अप्रोच टुवर्ड द मेटल आयंस ऑन द एक्सिस। तो जो भी d ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस होंगे दे विल एक्सपीरियंसेस मच मोर रिपल्शन, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो d ऑर्बिटल्स जो बिटवीन द एक्सिस होंगे उनकी एनर्जी घट जाएगी। इस तरह से जो d ऑर्बिटल्स हैं दे स्प्लिट इनटू टू लेवल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और ये दो लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे। तो पहला लेवल होगा T2G लेवल और दूसरा लेवल होगा EG लेवल। तो आप देख सकते हैं T2G लेवल में हमारे पास DXY, DYZ, DZX ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस हैं, इनके बीच में और लिगेंड्स के बीच में कम रिपल्शन है तो इनकी एनर्जी घट जाती है। वाइल इन EG लेवल वी हैव DX² माइनस Y² एंड DZ²। क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल्स जो थे दे आर ऑन द एक्सिस और लिगेंड भी कहाँ से आ रहे हैं, ऑन द एक्सिस, तो इस वजह से इनके बीच में और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ गई। तो आपने देखा कि ये जो D सब शेल होता है इट स्प्लिट इनटू टू सेट ऑफ एनर्जी लेवल EG एंड T2G इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। Now we will discuss the reason for color of transition metal compounds। तो इसके लिए मैंने एक configuration लिखी है D1। अब इस D1 configuration को I will write in the splitted d orbitals। तो we all know that d orbitals after splitting it split into two energy level T2G and EG। अगर D1 configuration है then electron will be in lower energy level T2G। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी लेवल में इट कैन शिफ्ट और इट कैन गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल EG। तो इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इट गेट शिफ्टेड इनटू हायर एनर्जी लेवल एंड the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed, and this frequency generally lies in the visible region, and the color which we observe correspond to the complementary color of the light absorbed, and this transition of the electron from lower energy level to higher energy level is known as DD transition। यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, अगर D ऑर्बिटल्स हायर लेवल भी लोअर लेवल भी पूरी तरह से फिल्ड है, मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन D10 है तो ये एक्साइटेशन होगी ही नहीं, क्योंकि एक्साइटेशन के लिए EG लेवल में कम से कम एक स्पेस खाली होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कॉन्फ़िगरेशन D0 है, जब D ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हाउ कैन इट गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। तो इस वजह से D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन में DD ट्रांजिशन नहीं होती है, और यही रीजन है कि जिन भी आयंस की कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 होती है दे आर कलरलेस बिकॉज देयर इज नो DD ट्रांजिशन। Now after discussing DD transition, now we can answer why transition metals generally form colored compound। So reason is due to DD transition as they have partially filled d orbitals। तो आप सिंपल सा आंसर लिख देंगे कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन। देन अगर आप D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एज वी डिस्कस दीज टू कॉन्फ़िगरेशन आर कलरलेस। क्यों कलरलेस होती हैं? बिकॉज देयर इज नो DD ट्रांजिशन इन दीज कॉन्फ़िगरेशन। फिर एक क्वेश्चन आता है, स्कैंडियम 3+ एंड जिंक 2+,
are colorless in aqueous medium. तो स्कैंडियम 3+ की कन्फिगुरेशन होती है 3D0, while zinc 2+ की कन्फिगुरेशन होती है 3D10, and we know that in both D0 and D10 configuration there is no DD transition, so they are colorless. Similarly एक और क्वेश्चन आता है कि टाइटेनियम 4+ is colorless while टाइटेनियम 3+ is purple in aqueous medium. तो यहाँ पे भी आप कन्फिगुरेशन लिखिए. सो टाइटेनियम 4+ की कन्फिगुरेशन है 3D0, तो इट मीन्स इट विल नॉट हैव एनी DD ट्रांजिशन, सो इट इज कलरलेस. while in titanium 3+ configuration is 3D1, so there is chances of DD transition giving it purple color. Now we will discuss the complex forming tendency of transition metals. So एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को बोला जाता है जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक केमिकल स्पीशीज जो है वो लोन पेयर डोनेट करती है और दूसरी जो केमिकल स्पीशीज होती है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करती है. तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल्स with them and they can accept the lone pair from ligands. ligands उनको बोला जाता है, उन केमिकल स्पीशीज को बोला जाता है जो लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं. तो इस वजह से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. तो हम रीजन लिख सकते हैं. पहला रीजन आता है दे हैव कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज, दूसरा आता है हाई आयनिक चार्जेस, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव d ऑर्बिटल्स फॉर एक्सेप्टिंग द लोन पेयर फ्रॉम द ligands फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन. That's why they can form a large number of complexes. तो ये थर्ड पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजनिंग में अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव d ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम द ligands, then you will get full marks. Next is transition metals and their compound, they act as catalyst in many reactions. तो रीजन आ जाता है why transition metals and their compounds are known for their catalytic activity. तो इसका रीजन जो है it is due to their ability to adopt multiple oxidation states. Second आता है they have ability to form complexes, and third is they can provide a large surface for adsorption. तो इसी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड दे हैव कैटालिटिक एक्टिविटी. इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं वेनेडियम 5 ऑक्साइड, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होने वाला कैटलिस्ट है, ये एक ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है. ऐसे ही यू कैन सी आयरन, इट इज अ कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस. एंड निकल कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में जब अल्कीन से अल्केन बनाया जाता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है, तो निकल यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट. और ये सारे ही ट्रांजिशन मेटल्स हैं या उनके कंपाउंड हैं. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन मेटल्स कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, they can trap in the interstitial site of the metal lattice. तो क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं why they form interstitial compounds. so रीजन हम दे सकते हैं because small atoms like hydrogen, carbon और nitrogen they can get trapped inside the crystal lattice of transition metals. That's why transition metals can form interstitial compound. एनसीईआरटी में इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, कुछ फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं.
तो वो भी आप देख लीजिए। जितने भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन प्योर मेटल्स, देन दे आर वेरी हार्ड। कुछ बोराइड्स ऐसे होते हैं उनकी हार्डनेस इट अप्रोचेस अप टू द हार्डनेस ऑफ डायमंड and they retain metallic conductivity, and last they are chemically inert. Now we will discuss the alloy formation property of transition metals. तो एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स दे फॉर्म अलॉयज रेडली, तो इसका रीजन जो है वो समझने के लिए आप ये समझिए, एक्चुअली अलॉयज दे आर ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। अब अलॉयज अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अलॉयज जो हैं दे कैन बी होमोजीनियस, कुछ अलॉयज ऐसे भी होते हैं जो हेट्रोजीनियस होते हैं, कुछ इंटरस्टिशियल अलॉयज भी होते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगी बेसिकली होमोजीनियस अलॉय की। सो अलॉय में बी होमोजीनियस सॉलिड in which atom of one metals are distributed randomly among the atoms of the other। तो यहाँ पे होमोजीनियस सॉलिड या अलॉय बनाने के लिए एक कंडीशन आती है कि these types of alloys are formed by atom which has metallic radii within 15% of each other। तो उनका रेडियाई 15% की रेंज में होना चाहिए। सो ट्रांजिशन मेटल दे फॉर्म अलॉयज रेडली, उसका रीजन आता है बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अगर आप ट्रांजिशन मेटल्स की अलॉय की बात करें दे आर वेरी हार्ड एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। एग्जाम्पल आ सकता है ब्रास जो कि कॉपर और जिंक का अलॉय है, एंड सेकेंड इज ब्रॉन्ज विच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर विद टिन। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द